Nandan and Parijat were the partner in a partnership firm sharing profit and loss 3:2. The firm was following calendar year as its accounting year. The following is the balance sheet of the firm on 31st December 2021. Asset liability they have given. On 1st January 2020, a company NP Limited was formed to take over the business of the firm on the following term. मतलब ये conversion है. The company would not take over the creditors for expenses to the extent 17,000. मतलब वो company को खुद को pay करना पड़ेगा. Assets are to be Good morning, sir. Assets are to be valued as goodwill 50, land and building 1,68,000, plant and machinery 50,000. Above the book value, furniture depreciated by 10%, rupees 5,000 of debtors to be treated as bad, and the balance 5% provision for doubtful debt. Cash and bank balance to be taken over in full, except to meet the creditors for expenses not taken over by the company. The purchase consideration is to be satisfied by issuing 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium 20%, rupees 1,50,000, and by issuing and rupees 1,50,000 by issuing 8% preference shares of rupees 100 each at par and balance in form of cash. So the necessary accounts to close the books. First of all, what you will do, you have to calculate the purchase consideration. Without that, you can't do it. Note 1, calculation of purchase consideration. Rupees কি taken over করেছে goodwill 50,000, land and building 1,68,000, plant and machinery 50% above the book value. above the book value. How much? Book value how much? 2,10,000. 2,10,000 plus 50,000 comes to 2,60,000. Next, फर्नीचर 10% depreciate करने के बाद फर्नीचर how much? What is the amount of the furniture? 1 lakh
minus 10% of 1 lakh. 90,000. Stock in trade 65. What is they have given? The nothing amount stock in trade. The stock in trade समझ लेंगे. अगर कुछ नहीं दिया है तो बुक वैल्यू ही उसका टेकन ओवर वैल्यू है. 68 ना 65? 65. Debtors 25. डेटर्स सर उसमें तो बोला है, क्या बोला है पढ़ो. उसमें बोला है ₹5,000 is to be treated as bad, okay, and balance 5% treated as doubtful for recovery, okay. तो 25,000 minus 5,000. सर आपने minus 5,000 क्यों किया? बिकॉज बैड डेट बोला है. तो 20,000, ओके. और प्रोविजन फॉर बैड डेट में बाद में दिखाता हूं. कैश एंड बैंक बोला है, कैश एंड बैंक टेकन ओवर एक्सेप्ट मीट द क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी. कितना नहीं लिया है? बोला है 17,000 नहीं लिया है, तो 17,000 फॉर्म पे करेगा, तो 28,000 कैश एट बैंक. कितना? 28,000 minus 17,000, because 17,000 फॉर्म पे कर देगा, तो फॉर्म के लिए तो पैसा लगेगा ना, और तो बोल भी दिया है. हाउ मच? 11,000. एनी अदर? देखिए ऑल एसेट कंसिडर्ड, गुडविल, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ये तो फर्म का वैल्यू था. जाहिर सी बात है न्यू बिजनेस ये वैल्यू में भी ले सकता है, डिफरेंट वैल्यू में भी ले सकता है. लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो किया था सेम वैल्यू में लिया था. आज जो डिफरेंट वैल्यू में लिया है तो ठीक है, डिफरेंट वैल्यू में लेने दो. टोटल कितना? टोटल एसेट टेकन ओवर हाउ मच? टोटल एसेट टेकन ओवर हाउ मच बेटा? क्लास में कोई नहीं है? 6,64,000. सॉरी 6,64,000. क्या क्या लायबिलिटी है? बिल्स पेबल 35, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स. बिल्स पेबल 35, creditors for goods 25 ना 28? 25. creditors for expenses सर तो नहीं लेगा बोला है, देखते हैं. creditor for expenses कितना? 40,000 में 17,000 नहीं लेगा. हाउ मच? 23,000. बोलो. 83,000. ना नहीं होगा, और भी एक कुछ चाहिए क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट. Provision for bad debt how much? 5% on. बोलो. 5% on. सर क्वेश्चन देखना. 20,000 बिकॉज बैड डेट के बाद जो बचा रहेगा उसके ऊपर बोला था, तो
तो 1000. Total creditors. Total creditors taken. सर Total टोटल liabilities लायबिलिटी taken. ना Liabilities taken. कितना? 84. Net asset taken over. Net asset taken over. A minus B. 5,80,000. होल्ड कर. A minus B तो नेट एसेट कितना? 5,80,000. डिस्चार्ज. Issue of equity shares of issue of equity shares of what? सर न्यू कंपनी का. Sorry. सर जो कंपनी नया बना उसका. Yes, issue of equity share of ANP Limited. कितना इक्विटी शेयर इशू था? बोलो. 20,000. कितना करके दिया है? ₹10 into 20 plus 20% on ₹10. श्योर और नो? 12 रुपया करके. क्लियर और नॉट बेटा? 12 यस रुपया सर. करके दिया है. 20% प्रीमियम तो कितना होता है? 2,40,000. इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स? 8% प्रेफरेंस शेयर्स. 8% प्रेफ शेयर्स ऑफ कौन सा कंपनी? ऑफ एनपी लिमिटेड. NP Limited. How much? 1,50,000. 1,50,000. तो कैश कितना? बैलेंसिंग फिगर. बिकॉज आपका टोटल है कितना? 5,80,000. तो कितना कैश होगा? बैलेंसिंग फिगर बोलो. 5,80,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,50,000. 1,90,000. 1,90,000 कैश में दिया है. क्लियर? तो नॉट 50. कुछ प्रॉब्लम में परचेस कंसिडरेशन बोल देता है, कुछ प्रॉब्लम में परचेस कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है टेकिंग द नेट एसेट बेसिस. तो ये आने का चांसेस ज्यादा है. तो परचेस कंसिडरेशन करने के लिए अलग से 4 से 5 नंबर रहता है. अब क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बिजनेस अकाउंट. नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है हम लोगों को.
debit realization account, credit rupees, आप लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में, पूरा क्लोज करना पड़ेगा, ऑल एसेट को क्लोज करेंगे। चलिए, जितना बुक वैल्यू है उतने में ही, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक 11,000, वाई 28,000 माइनस 17,000, ये क्लोज कर दिया। बाय क्रेडिटर्स, बाय 3 अमाउंट, बाय बिल्स पेबल अमाउंट कितना, यू आर क्लोजिंग इट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्लोज कर रहे हैं जो जो वैल्यू में था। बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल था 35,000, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 25,000, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना लेके जाएगा 23,000 ना, 40,000 नहीं लिखूंगा। ओके ठीक है, क्लोज तो किया। बाय एनपी लिमिटेड, परचेस कंसिडरेशन कितना 5,80,000, टू कैश कैश अकाउंट, पेमेंट फॉर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 17,000 वो लोगों ने पेमेंट किया है। चलिए, और कुछ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा देखना पड़ेगा। आई थिंक प्रॉफिट होगा टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बोल बेटा। 35,000 प्लस 25,000, अच्छा और कुछ है, मैंने तो कर लिया, देख लिया। हाँ हाँ हाँ, 35 25 प्लस 40 प्लस 5,80,000, 6,80,000 माइनस 5,58,000, minus 5,58,000, 1,22,000, 1,22,000, कौन सा रेशियो, PSR 3:2। स्टूडेंट में चेक whether I am done correctly or not. Profit on realization, Nandon and Parijat, 122,000 into 3/5 और कितना, हाउ मच बेटा, 73,200, Yes, sir. 122 into 2/5, 48,800. 48,800। स्टोरी खत्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया। लेकिन सर एनपीए अकाउंट तो ओपन हुआ है। यस, एनपी लिमिटेड
NP Limited, NP Limited account. True realization. कितना रियलाइजेशन अकाउंट में बोल? 60, 5,80,000। डिस्चार्ज कैसे हुआ है? बाय इक्विटी शेयर्स इन NP Limited. How much? 2,40,000, 240. 1,50,000 by 8% preference shares in NP Limited. Actually in नहीं होगा, of NP Limited. Yes. Of NP Limited. Of NP Limited. By cash. कितना? 190. आई 1,90,000। चलिए डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन 3 3 6 7 8 কেন ভুলভাল লিখছিস কেন? 4 4 2 4 6 NP by balance brought down. बोलो बैलेंस कैपिटल का कितना? 2,40,000, 2,18,000, 2,40,000, 2,18,000। कोई जनरल रिजर्व नहीं है। ओके। बाय रियलाइजेशन 73,248 की बोली 48,800। ओके। टू बैलेंस CD कितना? प्लस 2,40,000, 3,13,200। Yes, sir. ये कितना? 2,18,000 प्लस 48,800, 266,800. 2,66,800। बाई बैलेंस CD brought down चलिए now distribution to equity shares in of NP Limited। इक्विटी शेयर कौन सा बेसिस में? इन द रेशियो ऑफ PSR, ऑलवेज
इन केस ऑफ कन्वर्शन, जो पहले जो लेवल जिस प्रोपोर्शन में मालिक था, इन फ्यूचर में भी सेम प्रोपोर्शन में उसका मालिक होगा। तो कितना? 3:2। वेरी गुड। एंड इक्विटी शेयर है कितना? 2,40,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 1,44,000, 1,44,000, और ये 96. 96। नेक्स्ट, 2 इक्विटी शेयर्स of NP Limited. Sir, 8% preference share. Preference. Sorry, 8% preference shares. ये कवर करेगा, कुछ नहीं बोलता है। सिंस कैश अवेलेबल है तो प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल कितना? ओपनिंग कैपिटल रेशियो मतलब सर 2,40,000, 2,80,000, that is 1,50,000 in 240 is to 218. 240 plus 218 कितना? 458. 1,50,000 divided by 458 into 240, बोलो कितना प्रेफरेंस शेयर देंगे? 78,603, और ये होगा 1,50,000 minus 78,603। सवाल आएगा सर क्यों आप इस तरीके से देते हैं? एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज रहता है, और इक्विटी पार्टनर्स का कैपिटल में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है। तो जिस प्रोपोर्शन में पहले इंटरेस्ट मिलता था उसी प्रोपोर्शन में अब इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड मिलेगा। तो इसलिए सेम प्रोपोर्शन कैसे होगा? अगर मैं प्रेफरेंस शेयर को एज पर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो पहले भी मान लीजिए आपका कैपिटल 2,40,000, 2,18,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो इस बार भी आपको अगर प्रेफरेंस शेयर में 78,603 और 71,3797 अगर मैं देता हूं तो वो भी सेम प्रोपोर्शन में मिलेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल है, सर ये क्या फ्रैक्शन हो गया? तो शेयर तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको 600 करूंगा और इसको 400 करूंगा। अवॉइड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने ये किया है। ओके, फ्रैक्शन शेयर्स अल्टीमेटली आपका 1,50,000 होगा, तो 78,600, 71,400। एक्चुअली फ्रैक्शन शेयर को मैंने इग्नोर किया। नो सर तब भी तो टैली नहीं हो रहा है। टू कैश, इसका कोई रेशियो होगा? नो। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन 3,13,200 minus 1,44,000 minus 78,600, 90,600। প্রথমে ধরবেন ওই ছোট মালটা, আর বিট গুলো বাইরে রাখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একবারে ওটা ফেরে নিন, বারান্দায় করুন। कितना বাইরে দেখেন? 99,400. 99,400। दैट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश। और कैश देखो उतना ही दिया है, ऐड करके देखो बैलेंसिंग फिगर। डन सर। इस प्रॉब्लम में अगर कैश नहीं देता सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, देन नो प्रेफरेंस शेयर को इक्विवेलेंट टू कैश मानते, उसकी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। प्लस और एक अल्टरनेटिव हो सकता था,
क्या प्रेफरेंस शेयर के तो कैपिटल के बेसिस में दे दिया, बाकी जो कैश का डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो जो पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है वो कैश लाएगा और जो पार्टनर को कम मिल रहा है वो कैश लेके जाएगा। मैं कल एक प्रॉब्लम कराऊंगा इसी तरीके का, आप देखिएगा, ठीक है। बुक्स ऑफ द कंपनी करना है? नो, एकदम नहीं, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सर नहीं कैश है। को बैलेंसिंग क्यों लेते, एक बार बोल दिए ना। और क्या होगा उसको तब पेमेंट, जो पैसा फंड अवेलेबल है एनपी लिमिटेड से, जो पैसा मिला है, ये दोनों का क्लेम तो सेटल करना ही पड़ेगा। उसमें इक्विटी शेयर आपने पीएसआर में दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर आपने कैपिटल रेशियो में दिया है, तो बाकी डिफरेंस कैसे सेटअप होगा? कैश में सेटअप होगा। अब एक मजे का चीज दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एज्यूमिंग entire purchase consideration paid in equity shares, entire purchase consideration paid in equity share, तो क्या होता? दो जगह चेंज होता। अच्छी तरह से देखिए, बेसिकली ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। क्या? प्रेफरेंस शेयर कैश को काट दीजिए सर, 5,80,000 आ जाइए। यहां पर रियलाइजेशन प्रॉफिट में कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। अब आ जाइए, आप देखेंगे अब मजा। इक्विटी शेयर को ऑलवेज आपको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज पार्टनर का पहले जो पीएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, बाद में भी डिविडेंड सेम रेशियो में ही मिलना चाहिए, इसलिए उसको इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली बोल दिया है तो। अगर बोल देता है इक्विटी शेयर को 3:2 में बांटिए, बोल देता है इक्विटी शेयर को इक्वली बांटिए, तब आप अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला है, तो ऑलवेज इक्विटी शेयर इन द पीएसआर। तो 3,13,200, 5,80,000 divided by 5, 3,84,000, और ये 2,32,000। सर ये कैसे हो गया? एन को मिल रहा है 3,13,200 बैलेंस, और ये बंदे को शेयर मिल रहा है 3,84,000। क्या मजे की बात है? नो, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? सिंस उसको ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो उसको कैश भी लाना पड़ेगा, बाई कैश अकाउंट। फर्दर इंट्रोडक्शन, सिंस उसको ज्यादा मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, इसको फर्दर कैश इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। फर्दर क्या इंट्रोडक्शन, कितना इंट्रोड्यूस करेगा? सर 3,48,000 मिल रहा है सर। 3,48,000 क्यों? 5,80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3,48,000। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, बच गए, थैंक यू। 48 माइनस 3,13,200, उसका क्लेम था 3,13,200, शेयर मिल रहा है 3,48,000। फर्दर उसको कितना देना पड़ेगा बेटा? फर्दर उसको 34,800। 34,800 देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पी लिमिटेड का क्या हाल होगा? उसका क्लेम होना चाहिए था 2,66,800, और उसको शेयर दिया गया है 3,32,000 ड्यू टू पीएसआर। देखो ये पैसा किसको देंगे? ये कैश किसको दे देंगे? पी को सर ये देंगे, पी मतलब को। इन ने जो कैश लाया था वो पी को मैंने दे दिया। क्लियर? यस सर। मैंने दो तरीके से परचेस कंसिडरेशन करके आपको दिया है। अच्छा, देखते हैं कितना लोग रहते हैं। फाइन, 32, देखते हैं कौन कौन है। अच्छा, अब्दुल नहीं है? है सर। बस तुमको ही चाह रहा था, हो और नहीं। डन।
यहां तक कोई डाउट बेटा? अच्छा, दो चीज ध्यान से सुनिए, एकदम कंसंट्रेट करके सुनिए, सबको बोल रहा हूं। आप लोगों का एग्जाम में 6 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन 10 मार्क करके और 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स करके। 4 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन रहेगा 8 क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन रहेगा 4 क्वेश्चन का। 8 क्वेश्चन में आपके लिए हाथ में पड़ेगा डिपार्टमेंट, ब्रांच, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्विजिशन। क्लियर? 6 प्लस, सर ये तो 6 डायरेक्ट हो रहा है, प्लस एनी वन में और 2 और मिलेगा, हो सकता है हायर परचेज में 2 रहेगा, ब्रांच में 2 रहेगा, तो ये हो गया टोटल 8 क्वेश्चन। क्लियर और नॉट? क्या डिपार्टमेंट से 1 मिलेगा, ब्रांच से 2 मिलेगा, हायर परचेज से 2 मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से मिलेगा एंड इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। टोटल 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनी 4 करना है, एनी 4 आप एनी 4 से कर सकते हैं। जिसका जिस एरिया में हाथ तगड़ा है उस वो एरिया में हाथ तगड़ा करेगा। सामने मेरा इंटरनल जो एग्जाम होगा वहां पर मैंने इन्वेस्ट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन दिया है और हायर परचेस का रिपोजिशन एंड स्टॉक डेटर्स का क्वेश्चन दिया है। इजी। तो ये 2 आप अगर करेंगे तो आराम से आपका हायर परचेस से अगर 2 मिलेगा तो आपका हो जाएगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से 1 मिलेगा तो आपका हो जाएगा। ये आप लोग डिसाइड करेंगे क्या करेंगे और ना करेंगे। इतना गारंटी दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। लेकिन आप 4 एरिया में एकदम फोकस कीजिए, जो एनी 4 एरिया में 40 मार्क्स के लिए। अब आ जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन में हम मेरा ओपिनियन क्यों लग रहा है, डिपार्टमेंट से 2 मिलेगा और बिजनेस एक्विजिशन का क्वेश्चन लेके आएगा 20 नंबर के लिए। डिसोल्यूशन से प्रोबेबली 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और एट रिटायरमेंट एंड एडमिशन कम रिटायरमेंट बा पीएल अप्रोप्रिएशन से 2 आएगा। टोटल वहां से आपको टोटल कुल मिला के 2 करना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन है आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अगर कर सकते हैं ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट का सेम टाइप का ही प्रॉब्लम होता है तो एडमिशन रिटायरमेंट देख के चलिए, अगर 2 आ जाता है 2 कीजिए। और डिसोल्यूशन ऑलवेज इजी रहता है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कीजिए। ये भी हो सकता है एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, एक गर्नर वर्सेस मारे, एक एडमिशन, एक रिटायरमेंट आराम से दे सकता है 4 नंबर। तो एनीथिंग पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल। देखिए बेटा ऑनलाइन है तो आपको एडवांटेज तो कुछ मिल ही सकता है, तो आप लोग उसी तरीके से फॉलो करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो इस पैटर्न से हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, अपना आप एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे मुझे क्या करना है। अच्छा, टाइम लॉस नहीं हो इसलिए पहले से लूज पेज में आप लोग एग्जाम देंगे। लूज पेज के ऊपर अपना नाम और सीयू का रोल नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा अगर ब्रांच करेंगे ब्रांच का जितना अकाउंट बनाना है ये सब करके रख सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक कलर से लिखेंगे क्वेश्चन पे, आंसर्स पेपर ब्लैक जेल पेन से लिखेंगे, बिकॉज ब्राइट फोटो उठना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कोई काम में नहीं आएगा। बहुत सारा हुआ है ब्राइट फोटो नहीं उठने के कारण के लिए एवरेज मार्क्स मिल गया है। ओके, तो बी केयरफुल। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों का एग्जाम कौन सा तारीख को है? 26। तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम के बाद एडमिशन कम रिटायरमेंट, बहुत लोग बोल भी रहे हैं, एडमिशन कम रिटायरमेंट का 2 से 3 प्रॉब्लम करा दूंगा। उसको कराते ही हम लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट डन। बिजनेस एक्विजिशन भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन देख के आप लोग हैंडल कर सकेंगे।